راولپنڈی کا میدان قومی کھلاڑیوں کے نام، 3.5 سال کے بعد ہوم گراؤنڈ پر کامیابی۔ تیسرے ٹیسٹ میچ میں 9 برس کے بعد انگلینڈ کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی۔ دوسری اننگز میں گورے لڑکھڑا گئے، 112 رنز پر تمام کھلاڑی پویلین روانہ۔ قومی ٹیم نے 36 رنز کا ہدف 1 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ اسپنرز کی شاندار کارکردگی، نعمان علی 6 اور ساجد خان 4 وکٹیں لے اڑے۔ سعود شکیل پلیئر آف دی میچ، جبکہ ساجد خان 2 ٹیسٹ میچوں میں 19 وکٹیں لے کر پلیئر آف دی سیریز قرار۔ صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف سمیت گورنر سندھ کی میچ جیتنے پر قوم کو مبارکباد۔ افسوس ہے کہ جیتنے پر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ پوری ٹیم نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ہم سب پاکستان کو جیتتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ طویل عرصے بعد کامیابی پر بہت خوشی ہوئی۔ ساجد خان اور نعمان نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا۔ کپتان شان مسعود کی میچ جیتنے کے بعد گفتگو، ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے جائے، کوشش ہے کہ ذمہ داری سے سیٹ کا حق ادا کروں۔ کپتان شان مسعود نے پاکستان کی جیت قوم کے نام کر دی۔ پنڈی ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو بدترین شکست، تقریباً 4 سال کے بعد ہوم سیریز پاکستان کے نام۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی کھلاڑیوں سے ملاقات، انگلینڈ کے خلاف شاندار فتح پر کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کو مبارکباد۔ کہا، آپ متحد ہو کر کھیلے تو کامیابی نے قدم چومے۔ اس جیت کی ٹیم اور قوم کو بہت ضرورت تھی۔ سپریم کورٹ کی کمان جسٹس یحییٰ آفریدی کے سپرد، چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم، آرمی چیف، وفاقی اور صوبائی وزراء، 4 وزرائے اعلیٰ، 4 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس سمیت دیگر سینئر ججز کی شرکت۔ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو سپریم کورٹ پہنچنے پر گارڈ آف آنر گلدستہ پیش کیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریاست کے تینوں ستونوں کی خود مختاری سمیت قانونی حکمرانی کو یقین بنانے کا عزم دہرا دیا۔ حلف برداری کے بعد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ 28 اکتوبر کو فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھی تبدیل کر دیا۔ جسٹس امین الدین خان کمیٹی سے آؤٹ، رجسٹرار سپریم کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جسٹس منیب اختر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا حصہ۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل ہوگی۔ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ کی ویب سائٹ ایڈٹ، قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام بطور چیف جسٹس پاکستان ایڈٹ کر دیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ ہیں۔ کاش جسٹس منصور علی شاہ کل خط نہ لکھتے، ان کا عمرے پر چلے جانا ہی کافی تھا۔ جسٹس منصور نے اپنے مقام اور مرتبے کو برقرار نہ رکھا، خود کو چھوٹا کر لیا۔ رانا ثناء اللہ کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا، معزز ججز باہم دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کو خطوط پر خطوط لکھ رہے ہیں۔ خطوط میں گلی محلوں میں ہونے والے جھگڑوں کی زبان اور شرمناک اور گھٹیا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر ایک بار پھر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمن کے رخصت ہونے کے باعث کیس کی سماعت بغیر کارروائی 29 اکتوبر تک ملتوی۔ آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان ہے۔ پٹیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر عائد پابندی ختم۔ جیل ذرائع کے مطابق تمام قیدیوں کی ملاقاتیں اب معمول کے مطابق ہوں گی۔ وفاقی حکومت نے دہشت گرد حملے کے پیش نظر 4 اکتوبر سے 25 اکتوبر تک جیل میں ہر قسم کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کی ہوئی تھی۔ آئینی ترمیم میں جے یو آئی کا کردار قابل تعریف ہے۔ ترمیم پر حکومت نے 56 شکیں پیش کی جو بعد میں 22 پر آ گئیں۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ ہم نے آئینی ترمیم میں مارشل لاء میں بھی تبدیلی کی۔ 2018 کے بعد معیشت کو نقصان پہنچا، 2028 میں ہر شعبے سے سود کا خاتمہ ہو جائے گا۔
26वीं तरमीम मामूल की तरमीम थी, अब 27वीं तरमीम भी आएगी। नई तरमीम से अदालतों में इस्लाहात होंगी जिससे लोग इस्तिफादा कर सकेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। बानी पीटीआई का मामला किसी डील या ढील की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आता। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को सोचना चाहिए, पाकिस्तान पहले है या कोई और चीज। जिन चीजों का ताल्लुक रियासत से हो उन पर सियासत नहीं करनी चाहिए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में पुलिस चेक पोस्ट के करीब फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 8 पुलिस एहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। मुतासरा जगह पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में खवारजियों का मस्जिद पर हमला, 19 साला जेंटलमैन कैडेट आरिफुल्लाह शहीद। कैडेट ने दहशतगर्दों को जवाबी कार्रवाई के दौरान जाम शहादत नोश किया। नमाजियों पर हमला करने का ऐसा घनावना और बुज़दिलाना फेल इन खवारजियों के अज़ाइम की अक्कासी करता है। एक नौजवान कैडेट का ये अमल दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के जज्बा कुर्बानी और लगन का मुंह बोलता सबूत है। ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। नाइक सैफ अली शहीद का 76वां यौम शहादत। नाइक सैफ अली शहीद जंजुआ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर दुआया तकरीब। आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के सीनियर ब्रिगेडियर मोहम्मद हारून और ब्रिगेडियर उस्मान अली ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। नाइक सैफ अली शहीद ने 1948 की कश्मीर जंग के दौरान पीर कलेवा पहाड़ी का बहादुरी से दिफा किया। पाक रूस दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मश्क दरोबा 6 इख्तिताम पजीर हो गई। इंस्पेक्टर जनरल एविएशन लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रूसी सफ़ीर अल्बर्ट पी खोरोफ ने भी तकरीब का मुशाहिदा किया। 13 अक्टूबर को शुरू की गई मश्क में पाकिस्तान आर्मी की स्पेशल फोर्सेस और रूसी फौज के 54 एहलकारों ने हिस्सा लिया। तकरीब के दौरान दोनों ममालिक की अफवाज ने आला पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। मश्क का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली और तकनीकी बेहतरी बनाने के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना था। पाकिस्तान जमहूरियत इंसानी हुकूक और कानून के हुक्मरानी का पाबंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब। कहा, तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करते हैं। तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मसनूई ज़हानत के इल्म का सहारा लेना होगा। इसहाक डार ने पाकिस्तान को मजबूत आलमी मालियाती ढांचे में ढालने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। एक मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत को गैर आइनी तरीके से ख़त्म किया गया। अल्लाह ताला के हुक्म से हुकूमत कायम है। हम अगला कदम G20 में रखने वाले थे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, तरक्की करते मुल्क को बहरान की जानिब धकेला गया। नून लीग ने लोड शेडिंग का खात्मा करके तवानाई के बहरान पर काबू पाया। वफाकी वजीर और पंजाब में नून लीग को अवाम की तायद हासिल है। मुस्लिम लीग नून सबके साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखती है। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात का ड्रामा रचाया गया। कश्मीरी अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कश्मीरी कौम ने जद्दोजहद आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक का खिताब। कहा, कश्मीरी अवाम कर्फ्यू में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पुलिस स्टेशन होने के बावजूद कश्मीरी अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन तक नहीं जा सकते। इंसानी हुकूक की बात करने वालों को मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम क्यों नजर नहीं आते? कश्मीरी आज भी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की इस्लामाबाद में हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मसला कश्मीर का सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। पुलिस वैन पर हमला। PTI MPA के बेटे समेत 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने हमले को सोची समझी साजिश करार दे दिया। कहा कि 9 मई PTV हमला, पार्लियामेंट पर धावा बोलना जैसे शर्मनाक अज़ाइम तहरीक इंतशार के माजी का हिस्सा हैं और मनसूबाबंदी के तहत किए गए हमले में गिरफ्तार मुलजिमान को फरार करवाने की कोशिश को नाकाम बनाया गया।
पुलिस ने बहादुरी और दलेरी के साथ मुकाबला किया। रियासत के रिट को चैलेंज करने वालों को मिसाल बनाएंगे ताकि दोबारा किसी की ऐसी हरकत करने की हिम्मत न हो सके। कैदी वैन पर हमला, तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की तरदीद, इल्ज़ामात को वफाकी हुकूमत और पुलिस का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं हमारे पास वीडियो मौजूद है। करनौल थाने के SHO ने खुद गाड़ी रुकवा कर शीशे तोड़े और हमारे गिरफ्तार कारकुनान और MPS को गाड़ी के ताले खोलकर नीचे उतरने का कहा। हमारे कैदियों को कुछ हुआ तो SHO से लेकर IG और वज़ीर दाखिला सब जिम्मेदार होंगे। MD कैट में मुबैना बेज़ाब्तगियां। सिंध हाई कोर्ट का MD कैट 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म। जहां ताकतवर लोग हैं वहां आपके हाथ बंधे हुए हैं। आज ही MD कैट के नताइज का ऐलान करें। क्या 8,000 रुपए फी उम्मीदवार लिए गए? बज़ाहिर ये इम्तिहान कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर के MPDC के वकील से मुकालमा। कहा चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी सेहत और सेक्रेटरी जामियात से अहकामात लें। पूछ कर बताएं कि IBA दोबारा टेस्ट ले तो सिंध हुकूमत क्या सहूलियात देगी। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब गजा मार्च की कॉल। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुजाहिरीन के हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। मुल्जिमान के पथराव से अवामी और सरकारी गाड़ियों के शीशे टूट गए। FIR का मतन। इजराइल का ईरान पर जवाबी हमलों का आगाज। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में 7 धमाके देखे गए। तेहरान एयरपोर्ट धमाकों की आवाज़ से गूंज उठा। दमिश्क और होम्स में भी किए गए धमाके सुने गए। शामी फ़ज़ाइया मिसाइलों को नाकाम बनाने में मसरूफ़ अमल। शामी मीडिया ने हमलों की तस्दीक कर दी। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान की फ़ौजी तनसीबात पर इसराइल के हमले इलाक़ाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी और कायम करदा बैनुल-अक़वामी उसूलों और कवानीन से मुतसादिम हैं। मुमलिकत ने आलमी बरादरी और बाअसर और फ़ाल फ़रीक़ैन से मुतालबा किया है कि वो खित्ते में कशीदगी को कम करने और तनाज़ात के खात्मे के लिए अपना किरदार और जिम्मेदारियाँ अदा करें। अमरीकी सरपरस्ती में इजराइल पूरे खित्ते पर जंग मुसल्लत करना चाहता है। ईरान पर हमला नाजायज़ सेहूनी रियासत की तौसीह पसंदाना सोच का सबूत है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर्रहमान का सोशल मीडिया पर ईरान पर इजरायली हमले पर रद्द-ए-अमल। कहा सेहूनी रियासत के क़याम के पहले दिन से ही मशरिक़ वुस्ता इंतशार और बेयकीनी का शिकार है। इस फितने से निमटने के लिए मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना पड़ेगा। इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की खिलाफ वर्जी की। हमले पर पाकिस्तान की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का जारी बयान में कहना है कि इसराइली हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हमलों के नतीजे में इलाकाई अमन और सलामती को शदीद ख़तरात लाहक हैं। पहले से गैर मुस्तहकम खित्ता मज़ीद ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार होगा। डॉलर्स की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। कराची के इलाके PECHS में FIA की कार्रवाई। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। 13,500 अमरीकी डॉलर्स बरामद। मुलजिम गैर कानूनी तौर पर डॉलर्स और फॉरेन करेंसी ब्लैक मार्केट में खरीदो फरोख्त में मुलव्विस था। मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त साजिद हुसैन के नाम से हो गई। पोलियो की रोकथाम। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान और दीगर ममालिक में मंसूबों पर अमल दरामद। कम तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए $39 मिलियन के 15 मंसूबों पर अमल दरामद किया गया। $11 मिलियन के मंसूबे शाह सलमान मरकज़ इमदाद और इंसानी खिदमात के जरिए चलाए गए। सऊदी मीडिया की तस्दीक। और शहर कायद में आज भी गर्म और खुश्क मौसम बरकरार। समुद्री हवाएं बंद। कराची में 39 डिग्री तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 22%। शहर में गर्मी की हालिया लहर इतवार तक बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई।